Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. So, I wouldn't say this is the last day of me sharing communion word. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आज आखिरी बार है जो मैं वचन दूंगा यहाँ पे, But for a long time I won't be here. लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं काफ़ी समय तक यहाँ नहीं रहूँगा. So I hope you'll miss me. तो आशा करता हूँ आप मुझे याद करोगे. And before we go ahead in the communion word, इससे पहले कि हम वचन में जाए, I just want to thank everybody from KOHM team और मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा KOHM टीम में for giving me opportunities to share the communion word. कि आपने मुझे मौका दिया मैं प्रभु भोज का वचन बांट सकूं. And that helped me to grow in my spiritual life, because as I would share the communion word, I would increase in the wisdom of God. क्योंकि आपने जैसे मुझे मौका दिया ये वचन बांटने का, तो मैं आत्मा में बढ़ता गया, वचन में बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं वचन तैयार करता था. And I want to thank God to connect that He connected me to this KOHM ministries. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस KOHM मिनिस्ट्रीज में जोड़ा. And I want to thank God that everything that I learned from this ministry, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु को कि जो कुछ मैं यहाँ से सीख रहा हूँ. I want to thank Pastor Ganesh Reddy, हमारे जो पास्टर है गणेश रेड्डी, उनका धन्यवाद who is the करूँगा, leader. जो यहाँ के अगुए है, लीडर है. I want to thank you, Manoj bro, for introducing me to different teachings. और मैं मनोज ब्रदर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अलग अलग अच्छी शिक्षाओं से मतलब शिक्षाएं दी. Yeah, and I want to thank Sam brother to bring, he got me here. और मैं सैम ब्रदर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया. I want to thank Amish brother. और मैं आमिश भाई का भी धन्यवाद करना We used चाहूँगा. when I joined this ministry, I used to connect online in the times of COVID. Yes, And we would learn a lot of things from him. yes, हम कोविड के टाइम पे ऑनलाइन मिलते थे और बहुत सारी बातें सीखते थे. I want to thank Alisha sister अलीशा सिस्टर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, for everything that she used to teach or prophesy over my life. जो कुछ भी वो सिखाते थे और मेरे जीवन पे भविष्यवाणी करते थे उसके And लिए. the way they are taking care of children ministry is just amazing. और जैसे वो बच्चों की सेवकाई का ख्याल रख रहे हैं वो बहुत अद्भुत है. I want to thank Clifford sir और क्लिफर्ड सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा for prophesying, speaking word over me. कि उन्होंने मेरे जीवन पे भविष्यवाणी की, मेरे ऊपर वचन I बोला. want to thank you Tina, Victor, टीना और विक्टर का भी धन्यवाद always करूँगा being with me. कि वो हमेशा मेरे साथ थे. And yeah, I want to thank everybody. और मैं Anybody missing? सबका धन्यवाद करना चाहूँगा. I hope nobody is missing. I mean, the people who are missing are not here. जो लोग मिसिंग है यहाँ पे वो नहीं है. I mean, yeah, Ashish brother, Ashish brother. Sunitra sister, Yes. and rest, everybody, auntie, वो भी everybody. I want to thank you all. सबको धन्यवाद करता So we all are body of Christ, and we learn from each other. कि हम प्रभु का शरीर है और हम एक दूसरे से सीखते हैं. No matter how much you grow, no matter how much wisdom you have, still have to learn from others. ये मायने नहीं रखता कि हम कितना बड़े हैं, कितना चीज़ें सीखे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से भी सीखते हैं. And God has called us to humble ourselves. और प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम में वो नम्र करें. So we'll go into the communion word. हम प्रभु भोज के वचन में जाएंगे. And actually, I was so busy this whole week because I had to do all the shopping, packing. मैं ये पूरा हफ्ता बहुत बिजी था क्योंकि मुझे पैकिंग करना था, शॉपिंग करना था. And I didn't had time to like prepare anything, because usually I prepare whenever I have to share the communion word. और मैं कुछ तैयारी नहीं कर पाया प्रभु भोज के वचन के लिए, नहीं तो हमेशा मैं करता हूँ. I was actually asked to share the preaching, the whole word that we, यस, Yeah. मुझे मौका दिया गया था कि मैं पूरा वचन लूँ, but I was not able to. लेकिन मैं नहीं कर पाया. But thank you, Jesus. I still have opportunity to share the communion word. लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु भोज का वचन दूंगा आज. So I will just share whatever God was, just as I was coming, God was reminding me some things that I was reading
Last month I was reading the book of Leviticus. तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा जो प्रभु मुझसे बात कर रहा था इन दिनों से। तो I कुछ mean, दिन पहले मैं लय व्यवस्था पढ़ रहा था। Yeah, I mean, if you are a new Christian, if you read the book of Leviticus, it's gonna be, oh wow, what is this? The weirdest book of all. तो अगर आप नए मसीह बने और आप वो पुस्तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये तो अलग ही है कुछ। Probably you won't understand it, ज़्यादातर ऐसा होगा कि आपको नहीं समझेगा, but you would need the wisdom of the Holy Spirit. लेकिन आपको पवित्र आत्मा की बुद्धि की जरूरत Because पड़ेगी, the Old Testament is the shadow of the New Testament. कि जो पुराना नियम है वो नए नियम की परछाई है। Amen? Amen. So there were different kinds of offerings I believe there are 7 kinds of different offerings in the book of Leviticus. 7 प्रकार की भेंटें या चढ़ावे बताया गया है न्याय व्यवस्था में। So one is basically it's called wave offering. उसमें Wave offering. wave offering. Yes. I don't know what that is in Yeah, Hindi. it's there. Wave offering basically you wave it before God like this. Hindi में? हाँ. एक ऐसा दान होता है जो परमेश्वर के सामने आप लेके आते हो हाथ उठा के। As I was reading, I was confused. Lord, what is this wave offering? तो मैं पढ़ रहा था, मैं सोचा था यार ये क्या है So अलग। as I was reading, the priest would kill the animal. तो उसमें लिखा है कि जैसे ही वो याजक है वो जो जानवर है जिसकी बलि देनी है उसे बलि दे देता है, And they would just wave it before God. और वो प्रभु के सामने उसे ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं, And they would just लहरा take, देते हैं। just take it further and bring it back. तो वो आगे लहरा के वापस लेके आते थे। So I was trying to understand what is this. तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है, And God told me और प्रभु ने मुझसे कहा Jesus was lifted high. कि यीशु जो है वो On the ऊंचा cross. उठाया गया था What क्रूस was पे, God was given to man. कि जो परमेश्वर का था जो हमें दिया गया। What was God was given to man. यस, जो परमेश्वर था जो हमारे लिए दिया And गया, they would do this 7 times. और ये 7 बार किया जाता था। And that signifies that Jesus was the lamb of the Passover. और वो ये चीज़ बताता है कि यीशु जो था वो फसह का मेमना था। So you can imagine if you would live in the time of Old Testament, कि आप अगर कल्पना कर पाओगे कि अगर आप पुराने नियम के दिनों में होते you would have all be bringing your own lambs with you here. तो आज की सभा में आपने अपने मेमने लेके आते थे आप, And then you would park them somewhere. और उनको बाजू में रखते थे, And then pastor would offer them. और शायद पास्टर उनका बलि चढ़ा देते। And those who are male won't be able to partake in it if they are not circumcised. और अगर आपका खतना नहीं हुआ तो आप उसमें भाग नहीं ले पाते थे। So basically what I'm trying to say is तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ Jesus has made an easy way out for us. कि यीशु ने हमारे लिए एक आसान रास्ता खोला है। And Jesus said, do this in my remembrance. यीशु ने कहा ये मेरी याद में करो। It is so amazing that Jesus had made it so easy कि यीशु ने ये इतना आसान कर दिया है that we can just receive it anytime we want. कि ये हम किसी भी समय स्वीकार सकते हैं जब भी हम चाहते हैं। The priest in the Old Testament could not enter the holies of holy. कि पुराने नियम में जो मुख्य याजक था वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर पाता They था, had to prepare themselves for a whole year. उनको तैयारी करनी पड़ती थी पूरा साल ताकि वो एक दिन अंदर जाए। But now because of the blood of Jesus, लेकिन आज यीशु के लहू के कारण we not only enter in, हम सिर्फ अंदर ही नहीं प्रवेश कर रहे, but we enter it boldly. लेकिन अंदर हम धाड़स के साथ प्रवेश करते We हैं। don't have to tie a rope to our legs so somebody will pull us back. हमें खुद के पैरों पे रस्सी नहीं बांधनी पड़ती ताकि हमें कोई खींच ले अंदर We से। go running to Daddy. हम भागकर पिता के पास And जाते it हैं, is only because of the blood of Jesus. और ये सिर्फ यीशु के लहू के कारण हुआ है, And we're going to remember him tonight. और यीशु को हम याद कर रहे हैं आज। So we'll take part in this. तो हम प्रभु भोज में भाग लेंगे। So I'll just pray before we take part in this. हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Heavenly Father. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, Thank you that you have opened the door for us, Father God, to come into your kingdom, Lord. धन्यवाद पिता, आपने रास्ता खोला है कि हम आपके राज्य में आए प्रभु। Because when you see us, you see Jesus Christ. क्योंकि जब आप हमें देखते हैं आप यीशु को देखते You हो, don't see us sin. आप हमारे पापों को नहीं देख रहे हो, You see us like we have never sinned. आप हमें ऐसा देख रहे हो कि जैसे कि हमने कभी पाप नहीं किया है।
Thank you that you have given us a portion to call the sons and daughters of God. धन्यवाद आपने हमें मौका दिया कि हम आपको परमेश्वर के खुद को परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहला सकते हैं. Thank you that we can now enter the holies of holy boldly and we are seated in heavenly places with you. धन्यवाद प्रभु कि आज हम धाड़स के साथ धैर्य के साथ पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं. Thank you for the easy way, or thank you for making it so easy for us, Father. धन्यवाद इस रास्ते के लिए जो आपने हमारे लिए आसान बना दिया है. And we receive this in the name of Jesus. और हम इसका स्वीकार करते हैं यीशु के नाम में. Amen. You can receive it. हम भाग लेंगे. So we'll move to prosperity word. समृद्धि के वचन में जाएंगे. So I don't have a lot of things to share in prosperity, but I'll share something that God placed on my heart. ज़्यादा कुछ नहीं है शेयर करने के, लेकिन जो प्रभु ने मेरे दिल से बात की है वो आज हम आपके साथ बांट रहा हूँ. So God was just telling me, a lot of my people when they sow into the kingdom, परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे राज्य में जब बोते हैं, they don't sow with the faith. वो विश्वास के साथ नहीं बोते. They just sow because they it's just a thing to do every month when you get paid. You just pay, you just put your tithes in the church just because you have to, because it's a duty. तो बहुत से लोग इसीलिए देते हैं कि हर महीने जब सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, तो हमें ये देना है, तो उनके लिए वो आदत बन गई है, वो विश्वास से नहीं दे रहे. Yes, so whenever you sow or whenever you give to the Lord, जब भी आप बोते हो, प्रभु को देते हो, make sure you place your faith according to the word of God. हमें ऐसे करना चाहिए कि हमें उस पे वचन के अनुसार विश्वास करना चाहिए. Because Bible says, give and it shall be given unto you. कि वचन कहता है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा. Because every time when Jesus multiplied the fish and the bread, क्योंकि यीशु ने जब रोटी और मछलियों को बहुगुणित किया, he just thanked God. उसने सिर्फ धन्यवाद किया. And he believed that it will multiply. और उसने विश्वास किया कि ये बहुगुणित हो जाएगा. So same way, उसी तरह whenever you sow in the kingdom of God, जैसे हम बोते हैं प्रभु के राज्य में, make sure you place your faith. हमें इस बात का ध्यान रखना कि हम विश्वास रख रहे हैं उसके And ऊपर, believe that God is able to provide. और विश्वास कर रहे कि प्रभु हमारा देने वाला And है, believe that it will come 100-fold return. और हमें विश्वास करना है कि इसका 100 गुना हमारे पास आएगा. Sooner or later you will reap. बहुत the ही harvest. जल्दी हम उसकी कटनी करेंगे. Right, so thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Praise God. Hallelujah. हाँ, यहाँ पे जो कोई है, अगर आपको बोना है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज में, तो यहाँ पे ऑफरिंग बॉक्स है और QR कोड भी है, आप ऑनलाइन भी बोल सकते हो, और आपके स्क्रीन पे भी QR कोड होगा, उसके द्वारा भी आप बोल सकते हो. थैंक यू. थैंक यू ब्रदर विश्वास. आगे बढ़ते हैं, हम वचन में बढ़ते हैं, और जो लोग हमें देख रहे हैं पहली बार, हम आपका स्वागत करते हैं किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में, और जो पहली बार यहाँ पर आए हैं, हम आपका भी किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में स्वागत करते हैं. आगे बढ़ते आगे वचन में हम बढ़ेंगे. वचन में बढ़ने के लिए मैं दोबारा से एक ब्रदर क्लिफर्ड को बुलाना चाहूँगी, और साथ ही में ब्रदर मनोज. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Just last week I had a desire that I wanted the prophet to translate for me. पिछले हफ्ते मुझे इच्छा हुई कि भाई मेरे लिए ट्रांसलेट करे. It's not that Brother Ashish doesn't do it well, but I don't know, just a desire that I wanted the prophet to translate for me. भाई आशीष भी बहुत अच्छा करते हैं, बट मेरी इच्छा थी कि ये भाई करे मेरे लिए. Hallelujah. नहीं, prophet है. प्रॉफिट ये भविष्यवक्ता करे मेरे लिए. Hallelujah. Thank you Jesus. People who are watching online,
जो लोग हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, If the Lord speaks to you, call him. अगर प्रभु आपसे बात करता है तो इनको बुलाइए. You'll be built up in the word. आप वचन में बनाए जाओगे. He gives you a word from the Lord. ये प्रभु से आपको वचन देते हैं. Stake your life on it. अपने जीवन को उस पर बांधिए. Hallelujah. हालेलुया. All right, there was this guy who was pressurizing his father to give him a bike. एक लड़का था जो अपने पिताजी से जिद कर रहा था कि मुझे एक बाइक चाहिए. And the father was a little bit hesitating to give it to him. और पिताजी थोड़ा हिचकिचा रहे थे उसको देने के लिए. So the father told his son that I'm going to give you a bike only on one condition. तो पिताजी ने बोला कि एक ही शर्त है जिस पर मैं तुझे वो बाइक दूंगा. Your hair is quite grown up. I mean, like you got a long hair. तो तूने अपने बालों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है. Right? And if you cut your hair, then I'll give you a bike. तो अगर तू अपने बालों को छोटा करेगा तो मैं तुझे एक बाइक दूंगा. So this guy is not willing to cut his hair. अब ये लड़का अपने बालों को छोटा नहीं करना चाहता था. I'm talking about growing hair. That means the Nazarene. तो मैं एक बहुत लंबे उसके बाल थे उसके बारे में बात कर रहा हूँ. So they had heated arguments. तो बहुत ऐसे गहमा गहमी हुई उनमें. Then finally the boy said, no, I'm not going to cut my hair. तो लड़के ने बोला कि ठीक है मैं अभी बाल नहीं काटने वाला हूँ. Because even Jesus had long hair. क्योंकि यीशु के भी लंबे बाल थे. So the father said, okay, then go walking, because even the Lord went walking. तो पिताजी ने बोला ठीक है चल कर पैदल जाओ क्योंकि यीशु भी पैदल चल के जाते थे. Hallelujah. हालेलुया. Jesus loved walking so much that he forgot one day that he was walking on the water. यीशु चलना इतना पसंद करते थे कि एक दिन वो चलते चलते भूल गए कि वो पानी पे चलने लग I गए. believe that walking kept him physically fit. और चलने से वो फिजिकली भी तंदुरुस्त थे. Saints, start walking. संतो चलना शुरू करो. Let the toxins get out of your body. जो टॉक्सिन्स है अपने बॉडी से उसको निकलने दो The बाहर. body is the temple of the Holy Ghost. हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है. God is not going to do it for you. प्रभु आपके लिए ये नहीं करेगा. We have to do it. आपको ये करना है. Bodily exercise, it profits a little, the scripture says, but it does. शारीरिक व्यायाम जो है वो थोड़ा सा उसमें फायदा होता है लेकिन उसमें फायदा जरूर है. You and I, we are the custodian of our body. आप और मैं हमारे शरीर के इसको देखभाल करने की जिम्मेदारी हम पर है. Yeah, so if we are going to exercise, तो अगर हम व्यायाम करने वाले एक्सरसाइज करने वाले हैं you will keep it physically fit, तो इसको हम शरीर को फिट रखेंगे. right? Because God is living inside this house. क्योंकि परमेश्वर इस शरीर में रह रहा है. Our bodies are the temple of the Holy Ghost. हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है. What enters in, जो अंदर आता है it's my responsibility and your responsibility. आपका और ये मेरा जिम्मेदारी है इसको उस पर काबू रखना. Hallelujah. हालेलुया. Well, I'm going to miss Brother Vishwas. हम भाई विश्वास को बहुत याद करेंगे. And we all are going to miss him a lot. हम उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे. But I used to always tell him that, I don't know, but somewhere deep down in my heart, I know that God has made you for the United States of America. मैं उनको बोलता था कि बहुत ऐसे अंदर मुझे महसूस होता है कि परमेश्वर ने तुमको अमेरिका के लिए बनाया है. It's like Jonah was sent to Nineveh. जैसे योना जो भविष्यवक्ता था उसको निनेवे में भेजा था. And he went to Nineveh. My God, there's a prophetic word that is coming. When he went to Nineveh, the Bible declares the king and the whole of Nineveh, they repented. Amen. And they turned away from their wicked things and they turned to the Lord. ये एक भविष्यवाणी के तौर पर आ रही है कि जब निनेवे में योना भविष्यवक्ता जाता है तो वहाँ का राजा और वहाँ के सारे लोग मिलकर उसकी बात सुनने लग गए. God is taking you to the United States of America to bring back the United States to the Lord. Amen. परमेश्वर आपको अमेरिका लेकर जा रहा है कि अमेरिका को आप परमेश्वर के पास वापस लेकर आओ. The scripture says when the fullness of time had come, वचन में ऐसा लिखा है कि जब समय पूरा हो गया था God sent forth his son. परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा. So in his fullness of time, उसके समय की पूर्ति में, right? So the time has come. अब समय आ गया है. All right. God has already equipped you. परमेश्वर ने तुमको तैयार किया है. And you're going to go and take the word of God to the United States of America. और तुम जाकर परमेश्वर का वचन अमेरिका में लेकर जाओगे. And you're going to boldly tell the Americans और धैर्य के साथ तुम अमेरिकियों को बोलोगे that Jesus is Lord. कि यीशु ही प्रभु है. Amen. God is going to revive all the churches who once upon a time
were on fire for the Lord. परमेश्वर आपके द्वारा वहां पर जो चर्च थे एक समय में जो आग में चल रहे थे उनको फिर से आग में लेकर आएगा। God is going to use you to rekindle the fire. परमेश्वर तुमको इस्तेमाल करेगा कि उस आग को तुम फिर से जलाओगे। The backsliders will slide back. जो परमेश्वर से दूर चले गए थे वो फिर से परमेश्वर के पास आएंगे। That's the reason God is taking you over there. इस कारण से परमेश्वर आपको वहां पर लेकर जा रहा है। Wow, hallelujah. हालेलुया, What a mighty God we serve. कितना महान परमेश्वर है हमारा। Awesome Jesus he is. धन्यवाद यीशु। I never thought that the Lord would allow me to prophesy today. मैं सोचा नहीं था कि परमेश्वर आज मुझसे भविष्यवाणी करवाएगा। We just wait on the Holy Ghost. हम पवित्र आत्मा पर निर्भर है। We turn the service to the Holy Ghost हम पर इस सभा को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, because he's the boss of the service. वो इस सभा का मालिक है। Hallelujah. हालेलुया। So how was your week? आप लोगों का पूरा हफ्ता कैसा था? Everybody? सब लोग Awesome. awesome। If it is not, you will make it awesome. अगर awesome नहीं था तो आप उसको awesome बनाओ। I remember I had lost one of my bundle in the college, the papers that I check. मुझे याद है कि मेरा एक पेपर चेकिंग का जो बंडल होता है कॉलेज में वो खो गया था मुझसे। I didn't lose it anyway. It got misplaced somewhere. मेरी गलती से नहीं हुआ लेकिन खो गया था, वो कहीं चला गया था। And then I started praying about it. तो मैं उसके बारे में प्रार्थना करने लगा। And then I called Brother Manoj. तो भाई मनोज से मैंने Yeah. बात की। And then I think Brother Shubhi had come down. So this is the first time that I had seen him. भाई सुबी जो एक भविष्यवक्ता है वो आए थे, तो पहली बार मैंने उन्हें देखा था। And I saw the demonstration of God's power. और मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य को वहाँ पर मौजूद देखा। And then when the bundle was not found, I called up Brother Manoj. I said that, could you just call up Brother Shubhi and ask him where the bundle is? तो जब बंडल नहीं मिल रहा था तो मैंने भाई मनोज से बात की और पूछा कि आप सुबी से पूछ सकते हो क्या कि ये बंडल कहाँ पर मिलेगा। Now before that, when I met him, he was praying for me and he spoke in an unknown tongue and he called out my name in an unknown tongue. और उसके पहले जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी तो वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे और अन्य भाषा में प्रार्थना करते करते उन्होंने मेरा नाम बुलाया। And Clifford is not it's not an easy name to call out. और क्लिफर्ड जो नाम है वो बहुत आसान नहीं है बोलने के लिए। So he called out my name. तो उन्होंने मेरा नाम पुकारा। And I said, Lord, I was waiting for this for such a long time. I mean, like, I know that you know that I exist. और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु कितने समय से मैं इस चीज़ के होने के लिए रुका था। And then I said that if he can call out my name, he can surely know where the bundle is. तो मैंने बोला कि अगर वो नाम पुकार सकता है तो पक्का उसको पता होगा कि ये बंडल कहाँ पर खो गया है। So I started troubling Brother Sam a lot actually. Time and again calling him up. तो मैं भाई सैम को बहुत परेशान करने लगा बार बार उनको कॉल करके। And Brother Sam also, he started saying. भाई सैम भी कर रहे थे। I was wondering, why isn't he giving me a concrete answer? अरे हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा था कि भाई सैम मुझे ऐसे कॉन्क्रीट आंसर क्यों नहीं दे रहे कि हो जाएगा। Alright, so when Brother Shubhi called out my name, I was very excited. तो जब भाई सुबी ने उसके पहले मेरा नाम पुकारा था पवित्र आत्मा द्वारा तो मैं बहुत उत्साहित था। And when I was going home, the Spirit of the Lord spoke to me. और जब मैं जा रहा था तो पवित्र आत्मा मुझसे बोलने लग गया। And the Lord said, और प्रभु ने बोला, boy, you're really excited today. और तू बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहा है आज। Why don't you get so much more excited for my word than somebody calling out your name? और मेरा वचन तुझे इतना उत्साहित क्यों नहीं करता है जितना उत्साहित तेरा नाम पुकारने पर हो रहा है। हाँ लॉर्ड, मैं बोला सॉरी। तो मैंने प्रभु को बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई, माफ़ करो। And you know the Lord spoke to me from Jeremiah chapter 1. He says, before I formed you in the belly. और यिर्मयाह की किताब से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया और बोला कि तुझे जब मैंने तेरे माँ के गर्भ में तैयार किया था उससे भी पहले I knew you. मैं तुझे जानता था। My parents came to know me after I came. और मेरे माता पिता मुझे तब जानने लगे जब मैं पैदा हुआ। But God Almighty knew me before I could come. बट पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे मेरे पैदा होने से पहले से जानता था। Jesus knows you, your name and even your surname. यीशु आपको जानता था, आपके नाम को जानता है और आपके पूरे घर के नाम को भी जानता है। He knows our history, geography, chemistry, everything. वो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब चीज़ को जानता है।
You know, if he doesn't know anything, if he doesn't know about us, that means he's not God. अगर वो हमारे बारे में ऐसा कोई चीज़ है जो वो नहीं जानता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। He knows everything before things can happen to us. वो हर उस चीज़ को जानता है, वो चीज़ें हमसे हमारे साथ होने से पहले, Because he is the Alpha and the Omega. क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। If he is the Alpha and the Omega, then where are you? अगर वो अल्फा और ओमेगा है तो आप कहाँ पर हो? You are at the center. आप बीच में हो। Hallelujah. हालेलुया। He is our God who knows everything about us. वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे बारे में हर चीज़ को जानता है। He knows everything in and out. वो हर चीज़ को जानता है, अंदर और बाहर से। So the Lord spoke to me, said, "Before I formed you in the womb, I knew you." और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू गर्भ में तेरा धारण होने से पहले मैं तुझे जानता था। I chose you to be mine, मैंने तुझे चुना कि ताकि तू मेरा हो, and I anointed you to be the prophet to the nations of the earth. और मैंने तुझे अभिषेक किया है ताकि तू राष्ट्रों के लिए एक भविष्यवक्ता हो। I said, "Lord, I'm going to stick to what you spoke to me." और मैंने प्रभु जो तूने बोला है, जो तूने लिखा है, इसमें मैं इसके साथ ही बना रहूंगा। If you stick to the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन के साथ बने रहते हो you will come back with a testimony. तो आप एक गवाही के साथ वापस आओगे। So I said, "Okay, fine. I'm not getting an answer." तो मैंने कहा कि इनसे मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है, And started getting a little bit anxious about things और थोड़ा मैं परेशान हो रहा था इस चीज़ के बारे में, because it was a very sensitive issue क्योंकि बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा हो गया where the bundle got lost. क्योंकि वो बंडल खो गया था। And as I started talking to the Lord, I heard the Holy Ghost telling me very clearly और जैसे मैं प्रभु से बात कर रहा था तो मैंने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी बहुत साफ तरीके से that bundle, the Lord said that it is there in the midst of some other bundles also. It's got inserted by mistake. और प्रभु ने बोला कि वो जो बंडल है वो बाकी बंडल्स के साथ उसके बीच में वो चला गया है गलती से। But you know, at times our mind comes in the middle. लेकिन बहुत बार हमारा जो मन है वो बीच में आता है। If it is not renewed, then it is carnal. If If it is not renewed, then it is carnal. अगर आपका मन नया नहीं है तो वो दैहिक है। Pictures started framing into my mind और ऐसे पिक्चर जो है मेरे मन में बनने लग गए that I'm standing like a kaidi before my management, और मैं कैदी बनकर मेरे मैनेजमेंट के सामने खड़ा हूँ and then they are questioning me, और वो लोग मुझसे पूछताछ कर रहे हैं, "Where is the bundle? बंडल कहाँ पर है? Can't you take responsibility?" तुम्हें जिम्मेदारी लेनी नहीं आती है क्या? So there are a lot of things that come into the mind, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में आ रही थी, but you can overrule it by the word of God and by the Spirit of the living God. लेकिन इन विचारों को हम परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा और उसकी आत्मा के द्वारा इन पर हम जय पा सकते हैं। Saint, believe me, it was not that easy. संतों, मुझ पर विश्वास करो कि ये आसान नहीं था, It would have been very difficult for me बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे ये, because that bundle consisted of around 60 answer sheets. क्योंकि वो उस बंडल में 60 आंसर शीट्स थे। So how do we give marks? तो हम बच्चों को मार्क्स कैसे देंगे? Then I said, "Lord, in the name of Jesus, wherever that bundle is, मैंने बोला, प्रभु यीशु के नाम से जहाँ पर भी वो बंडल है let it manifest." उसको मेरे सामने प्रकट होने दो। You know, God wanted to show me the power of His word. और प्रभु मुझे उसके वचन का, उसके शब्द का सामर्थ्य दिखाना Listen, चाहता we prophesy in part. था। हम भविष्यवाणी जो करते हैं वो थोड़े थोड़े में करते हैं। That's why, you know, Brother Manoj, he tells sometimes that मैं हर टाइम प्रोफेसी को फिल्टर करता हूँ, जब भी मैं मनीष भाई से बात करता हूँ बोलते कि हर बार मैं भविष्यवाणी को फिल्टर करता हूँ, right? Because we know in part, क्योंकि हमको थोड़ा ही पता होता है, we don't know everything. हमको पूरा नहीं पता है। Even the man of God, women of God, they know only in part, not everything, परमेश्वर के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा ही पता होता है, right? Only Jesus knows everything. सिर्फ यीशु को सब कुछ पता है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God is the prophetic word. परमेश्वर का वचन जो है वो एक भविष्यवाणी वाला वचन है। The whole world was created by the word of God. पूरा जो संसार था उसका निर्माण उसके वचन के द्वारा हुआ। So when everything, the visible and the invisible, have been created by the word of God, you can create everything and anything for you by the word of God. जो दिखने वाली और जो अदृश्य चीजें हैं वो सारी परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाई गई थी। So when I declared the word, सो मैंने उस वचन को घोषित किया। it was like, you know, the word just navigating where the bundle is. और वो वचन ऐसे ढूंढते हुए चला गया जहाँ पर वो बंडल था। And after I think 4 days, और 4 दिनों बाद the bundle we saw it inserted in some other bundle. और उस बंडल को हमने दूसरे बंडल्स के साथ देखा। Which the Holy Ghost had already spoken to me. जो पवित्र आत्मा ने पहले मुझे बताया था। Hallelujah. हालेलुया। You know, He's the glory and the lifter of our heads.
वो हमारे सर को, हमारे गौरव को ऊंचा उठाता है। He will never ever put us to shame. वो कभी भी हमको लज्जित फज्जित होने नहीं देता है। Instead of our shame, we will have double honor. हमारे जो शर्म है, हमारी जो लज्जा है, उसके मुकाबले हमको दुगना सम्मान मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Glory to his name forevermore. उसके नाम की बड़ाई हो हमेशा के लिए। All right, I was studying on the book of Luke, लूका की किताब में मैं अध्ययन कर रहा था, and there are some things which the Spirit of God started ministering to me. और कुछ बातों से पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित करने लगा। This is something very awesome. बहुत अद्भुत है ये चीज़। And when the Lord started ministering to me, और जब पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित कर रहा था, my eyes were not dried. मेरी आंखें सूख नहीं रही थी। I said, Lord, I have read this portion of scripture so many times, but I never saw things in it. इस वचन को मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन उन चीज़ों को मैंने इसमें देखा नहीं था। How many in the house love to worship Jesus? कितने लोग हैं इस घर में जिनको यीशु की आराधना करना बहुत पसंद है? Everybody loves to worship Jesus, right? हर कोई उसकी आराधना करना पसंद करता है। When the woman at the well asked the Lord that we worship on this mountain, and you say that at Jerusalem we got to worship. जब उस कुएं के पास जो स्त्री थी, उसने यीशु से कहा कि हम तो इस पर्वत पर आराधना करते हैं, लेकिन तुम यहूदी लोग बोलते हो कि तुमको यरूशलेम में ही आके आराधना करना है। And the Lord said that God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. और प्रभु ने कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है, और जो भी उसकी आराधना करता है उसने आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करनी है। Hallelujah. हालेलुया। Now the Lord started teaching me about worship from the book of Luke. और प्रभु मुझे आराधना के बारे में सिखाने लग गया लूका की किताब से। This is Luke chapter 7 verse 36. लूका का 7 और 36 वचन हम देखेंगे। There was one Pharisee who desired the Lord to come and dine with him. और एक फरीसी था जिसकी इच्छा थी कि यीशु आकर उसके साथ भोजन करे। And the scripture says, now this is Luke chapter 7 verse 36 onwards, and the scripture says, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. और लूका का 7:36 में ऐसा लिखा है कि एक फरीसी था जिसने ऐसी इच्छा दिखाई कि प्रभु आकर उसके साथ भोजन करे, और यीशु जाकर उसके घर में उसके साथ बैठ गया। Wow, see the humility of the master. और यीशु की नम्रता को हम देख सकते हैं यहाँ पर। A Pharisee एक फरीसी calling the master, जो हमारे प्रभु को बुला रहा था, and the Lord goes to dine with him. और प्रभु जाते भी है उसके साथ खाने के लिए। And the scripture says, and behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. और वचन में लिखा है कि वहाँ पर एक स्त्री थी, उस शहर में एक पापी स्त्री थी जो एक बहुत कीमती परफ्यूम को लेकर, अलेबास्टर जिसको बोलते हैं, उसको लेकर उस जगह पर वो आई। Verse 38 says, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. और 38 वचन में ऐसा लिखा है कि वो यीशु के पीछे रुककर रोने लगी, और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को वो धो रही थी, और अपने बालों से उसने यीशु के पैरों को पोंछा और उसको चूमा। Verse 39 says, and when the Pharisees which had bidden him saw it, he spake within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that toucheth him, for she is a sinner. और 39 वचन में यीशु को ऐसा समझ में आया कि जो फरीसी थे वो अपने मन में सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे कि ये कैसा मनुष्य, अगर ये सच में भविष्यवक्ता होता तो इसको पता होता कि ये स्त्री जो है एक पापी स्त्री है जो उसको छू रही है। The Lord hears and knows everything that we think in the heart. और प्रभु हर उस चीज़ को सुनता है और जानता है जो हमारे दिल में हम सोचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now this Pharisee calls the Lord a prophet, और ये फरीसी जो है वो यीशु को एक भविष्यवक्ता बोलता है, which he was. जो वो था। Jesus of Nazareth, he was a prophet. और यीशु नासरी होने के नाते वो एक भविष्यवक्ता भी था।
but he is not only a prophet, he is more than a prophet. वो सिर्फ एक भविष्यवक्ता नहीं है, वो एक भविष्यवक्ता से बहुत ज्यादा है. He is God Almighty who created the heavens and the earth. वो परमेश्वर है जिसने इस संसार और इस आकाश और पृथ्वी को बनाया. Because the scripture says that all things were made by him, and without him was not anything made that was made. और वचन ऐसा कहता है कि जो कुछ इस संसार में है वो सब उसके द्वारा बनाया था और उससे अलग होकर कोई भी चीज का निर्माण नहीं हुआ. Now the word of God declares, the Lord speaks to him and says, Simon, I have some word to say unto thee. And he said, Master, say on. और 40 वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु शिमोन से बोलते हैं कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, और शिमोन बोलता है कि हाँ प्रभु बात कर. And the Lord says there was a certain creditor which had 2 debtors. The one owed him 500 pence and the other 50. और यीशु उससे बोलता है कि एक ऐसा कर्जदार था जिसने 2 लोगों को कर्जा दिया था. एक को 100 रुपए दिए और दूसरे को 50 रुपए. एक को 100 रुपए दिए, दूसरे को 50. Yeah, and verse 42 says, and when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him the most? और जब इन दोनों के ये पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, तो इस मालिक ने एकदम जल्दी से इनको दोनों को माफ कर दिया. और यीशु ने पूछा कि अब इन दोनों में से कौन उस मालिक से ज्यादा प्यार करेगा. Wow. Wow. We have been forgiven a lot, saints. संतो, हमको बहुत बड़े गुनाहों की माफी मिल गई है. Hallelujah. हालेलुया. The one who has been forgiven the most loves the most. जिसको सबसे ज्यादा माफ किया गया है वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है. Now verse 33 says, Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. और जब यीशु ने प्रश्न पूछा कि वो किससे ज्यादा प्यार करेगा, तो शिमोन ने ये बोला कि जिसके ज्यादा पैसे माफ हुए हैं वो उससे ज्यादा प्यार करेगा. और यीशु ने कहा कि तू सही बोल रहा है. Verse 44 says, And he turned to the woman and said unto Simon, Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she has washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. आमीन. और यीशु फिर से उस शिमोन के पास मुड़ता है और बोलता है कि जब से मैं तेरे घर में आया हूँ तो तूने मुझे अपने हाथ धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, लेकिन जब से मैं यहाँ पर बैठा हूँ ये औरत लगातार अपने आंसुओं से मेरे पैर धो रही है, अपने बालों से उसको पोंछ कर मुझे चूम रही है. Saints, please listen to the word of God carefully. संतोष, वचन को बहुत गौर से सुनो. Your worship life will change आपके आराधना का जीवन बदल जाएगा completely. पूरी तरह से. For it changed mine. इसने मेरी आराधना को बदल दिया. See, if there is something called change that comes into your life, it has to be through the revelation of God's word. अगर कोई बदलाव हमारे जीवन में आना है तो उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही आना है. Now, you know, in those days when anybody calls you home, तो उन दिनों में जब भी आपको उनके घर पे अगर कोई बुलाता था, this was the Jewish custom. तो ये यहूदियों का एक नियम था. So if one Jew calls somebody else, तो अगर एक यहूदी दूसरे यहूदी को बुलाता है, the moment he is at the door, जब वो उसके दरवाजे पे पहुंचता था, this person, if he has servants at home, अगर इस व्यक्ति के पास सेवक है इसके घर में, he'll send him with a jar of water, तो वो एक पानी के जार के साथ इनको भेजता था. and first the most insignificant servant, और जो सबसे छोटा सेवक है he will come, वो आकर make the guest to sit, वो उस गेस्ट को बिठाता था. and then most insignificant servant will remove the sandal of the guest, और वो सबसे जो छोटा सेवक है वो उस गेस्ट के चप्पल को उतारता था. and then he'll take the water and start washing the feet of the guest. और वो पानी लेकर उस अतिथि जो आया था, उसके जो मेहमान आया था, उसके पैरों को वो धोने लगता था. And then he'll take a towel and dry his legs. और एक टॉवल लेकर उसके पैरों को सुखाता था. Now the scripture says when he entered the house of Simon, और वचन में लिखा है कि जब यीशु शिमोन के घर में प्रवेश करता है, Simon treated him as just as a common man. और यीशु को उसने एक साधारण मनुष्य के जैसा उसके साथ बर्ताव किया. You know, if I want to insult the guest that I have called, तो अगर जो मेहमान को मैंने न्योता दिया उनका अगर मुझे निरादर करना है, I just have to, I don't have to do anything for him. If he comes in, I'm not going to give him water to wash his feet. अगर वो घर में आ रहा है और मुझे उसका निरादर करना है तो उसको मैं सिर्फ पानी नहीं दूंगा अपने पैरों को धोने के लिए. Now when this was seen by the woman, और जब उस स्त्री ने इस चीज को देखा, she was totally upset. उसको दुख हुआ. And what Simon did not do
for the Lord Jesus Christ. She wanted to do it for him. और जो शिमोन ने यीशु के लिए नहीं किया, वो स्त्री उस चीज को करना चाहती थी यीशु के लिए. Now this lady didn't have a reputation to ask for water. और इस स्त्री का एक ऐसा सम्मान नहीं था कि वो लोगों से पानी मांग पाती. She didn't have a reputation to ask for a towel. उसका इतना सम्मान नहीं था कि वो एक टॉवल को मांग सकती थी लोगों से. So when she saw these things happening, how the Lord was treated like a common man, और जब उसने देखा कि क्या चीजें हो रही है और कैसे यीशु को एक साधारण मनुष्य जैसा उसके साथ बर्ताव किया जा रहा है, she broke into tears. उसको वो रोने लगी. I told you she didn't have a reputation to ask for water. और उसका इतना सम्मान नहीं था लोगों के बीच में कि वो पानी किसी से मांग पाती. She didn't have a reputation to ask for a towel. वो एक टॉवल को मांगती, इतना उसका सम्मान नहीं था. So the scripture says, see this woman, verse 44. I entered into thine house, thou gavest me no water for my feet, but she has washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. और यीशु शिमोन से कहते हैं कि जब मैंने तेरे घर में प्रवेश किया तो तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये स्त्री जो है अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है. Wow. Amen. If Simon and the other guests were not treating the Lord royally, there was a woman over there who was treating him royally. Amen. यदि शिमोन और बाकी के जो लोग थे वो अगर यीशु को एक राजा के जैसे नहीं देख रहे थे, तो वहाँ पर एक स्त्री थी जो यीशु को एक राजा के तरह देखभाल कर रहा. What was she doing? क्या कर रही थी वो? She was worshipping the Lord. वो यीशु की आराधना कर रही थी. Not with words, अपने शब्दों से नहीं, but with her tears and with her hair. अपने आंसुओं से और अपने बालों से. Saints, you got to understand something. संतो, आपको कुछ समझना है. You know, in those days, they didn't have shoes, the type of shoes that we wear. उन दिनों में ऐसे उनके पास हमारे जैसे जूते नहीं होते थे. They had open sandals. ऐसे खुले सैंडल होते थे उनके पास. And when people used to walk on the road, और जब रोड पर लोग चलते थे, there was a lot of dust that used to get accumulated on the legs. तो बहुत सारा धूल जो है उनके पैर पे जमा हो जाता था. Sometimes the animal dung also used to get deposited on the leg. कभी कभी जानवरों का गोबर वगैरह भी वो उनके पैरों पे लगता था. So when she must have seen the legs of the Lord, she must have seen a lot of dust accumulated. तो जब उसने यीशु के पैरों को देखा तो उसने देखा होगा कि बहुत सारा धूल यीशु के पैरों पे था. The velocity of her crying was increased so much that Jesus says she has washed my feet with her tears. और वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि यीशु कहते हैं कि उसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो डाला है. There was dust accumulated on the legs of the master. और जो भी धूल यीशु के पैरों पे जमा थी, There was animal dung on his legs. शायद जानवरों का गोबर वगैरह भी लगा होगा. But you know what she did? और आप जानते हो क्या किया उसने? She used a hair as a towel to clean up the dirt. और अपने बालों को उसने इस्तेमाल किया एक टॉवल के तौर पर, और उसने उस सारी मिट्टी को, सब चीज़ों को पोंछा. Wow, what a worship service that was. क्या एक अद्भुत आराधना का सर्विस था वो. She didn't turn to some musician and say that, give me G. म्यूजिशियन की तरफ मुड़ के उसने ये नहीं बोला मुझे जी कॉर्ड दो. There was no G CD over there, please. उस समय GCD उनके पास नहीं था. There were only tears and there was a hair. और सिर्फ आंसू और बाल थे उसके पास. You know, the Bible declares the glory of a woman is a hair. और बाइबल कहता है कि एक स्त्री का जो गौरव है वो उसके बालों में है. She said that my glory is good for nothing but to clean up my master's feet. और उसने ये कहा कि जो मेरा गौरव है वो किसी काम का नहीं है, सिर्फ मालिक जो है उसके पैरों को पोंछने के काम है. There was not a single song that she sang over there. और वहाँ पर उसने एक भी गीत को नहीं गाया था. She didn't say lift her hand saying hallelujah. और उसने अपने हाथों को उठाकर हालेलुया ऐसा नहीं गाया था. She didn't say you deserve the glory. उसने ये भी गाना नहीं कहा तू शक्तिमान. She gave him the glory that he deserved. और उसने वो गौरव यीशु को दिया जिसके वो काबिल था. What a worship service that was. और कितना अद्भुत वो आराधना का सर्विस था. You know, you don't have to sing a song to worship Jesus. आपको गाने की भी जरूरत नहीं है यीशु की आराधना करने के You लिए. don't have to strike a chord to worship him. आपको कॉर्ड्स बजाने की जरूरत नहीं है उसको आराधना करने के लिए. You can worship him just the way you are. आप जैसे हो ऐसे ही उसकी आराधना कर सकते हो.
And the Lord didn't tell her to get herself cleaned up and then come and worship और Him. यीशु ने ये नहीं कहा कि पहले अपने जीवन को सुधारो और फिर आकर मेरे पैरों को First she धो। worshipped Him and then the Lord cleaned her up. और पहले उसने यीशु की आराधना की और फिर यीशु ने उसको माफ Because किया। Jesus said, "Go, your faith has saved you." और यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Because the Lord says that, verse 44, "Seest thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she has washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head." और यीशु ने कहा कि जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे पानी नहीं दिया मेरे पैरों को धोने के लिए, लेकिन स्त्री ने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया और अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा। You know, when the guest enters the house, जब एक मेहमान घर में प्रवेश करता है, first you wash their feet, पहले लोग उसके पैरों को धोते थे and then you kiss them on the cheek, और उनको गाल पर चूमते थे telling him that you are most welcome. कि आपका स्वागत है। You honor the guest, you don't dishonor them. आप मेहमानों का सम्मान करते हैं, उनको उनका निरादर नहीं करते। You know, the Bible declares we got to revere the master. और बाइबल कहती है कि जो मालिक है उसकी हम उसका आदर हम करते हैं, God has to be in reverence. और परमेश्वर को आदर हमको करते रहना है। When you you know, if a man of authority or a woman of authority steps into the house, boy, you stand on your feet. और जब एक अधिकार में जो मनुष्य है वो अगर घर में प्रवेश करता है हमारे, तो हम खड़े हो जाते हैं। Had Simon known that the one who is coming to my house is my creator, और यदि शिमोन को पता होता कि जो मेरे घर में आ रहा है वो मेरा रचाने वाला है, he would have treated him very differently. उसको बहुत अलग उसके साथ बर्ताव करता था। Only the woman knew it. सिर्फ वो स्त्री को ये चीज़ पता थी She worshipped him. और उसने उसकी आराधना की, She adored him. उसने उसका आदर किया She glorified him. और उसको उसकी महिमा की। You know, the Lord must have enjoyed in the house of Simon like anything. और प्रभु ने बहुत उत्साह किया होगा, आनंद किया होगा शिमोन के घर में। Wow, he must have said, "This is worship." और यीशु ने कहा होगा कि यही आराधना है। It's like, the Father seeking for such to worship him. और वचन में लिखा है कि पिता ढूंढ रहा है, खोज रहा है ऐसे लोगों को उसकी आराधना करने के लिए, And the Lord found her. और प्रभु को वो मिल गई। What an awesome worship that was. कितना अद्भुत वो आराधना था। And the Lord said that, "Thou gavest me no kiss, but this woman since the time I came in hath not ceased to kiss my feet." और यीशु ने शिमोन से कहा कि जब मैं आया तूने मुझे चुम्बन भी नहीं दिया, लेकिन जब से मैं बैठा हूँ इस स्त्री ने मेरे पैरों को चूमना बंद नहीं किया। Worshipping and kissing is one and the same. और आराधना करना और चूमना ये एक ही चीज़ है। Hallelujah. हालेलुया। Now there's nothing wrong in worshiping the Lord with a song or an instrument. और प्रभु की आराधना गीतों के द्वारा और इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा करना, इसमें कोई गलत नहीं है। We do worship Him. हम उसकी आराधना करते हैं We ऐसे। do worship Him with words. हम उसकी आराधना शब्दों से भी करते हैं। We do worship Him with the instrument. हम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी उसकी आराधना करते But हैं। this woman didn't have a keyboard in her hand. इस स्त्री के पास कीबोर्ड नहीं था उसके हाथ There were में, no musicians over there. और वहाँ पर म्यूजिशियंस नहीं थे उसके And there was साथ, nobody singing Hallelujah to the Lord. और वहाँ पर कोई हालेलुया ऐसा गा नहीं रहा था। But there was something that was happening, was heart to heart worship. और दिल से, उसके दिल से आराधना निकल रही थी, It was not with word but in action. और वो शब्दों के द्वारा नहीं लेकिन कृत्यों के द्वारा आराधना हो रही थी। Wow. Man, I sense the anointing in the house. मुझे परमेश्वर का अभिषेक महसूस हो रहा है इस घर में। And the scripture says, verse 46, "My head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment." और यीशु ने उससे कहा कि तूने मेरे सिर को भी तेल नहीं लगाया, लेकिन इस स्त्री ने उस कीमती मलम को मेरे पैरों पर लगाया। This woman must have said, "If nobody honors my Creator and my Lord in this house, I'm going to do it." और यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे रचाने वाले को इस घर में अगर उसका आदर नहीं करेगा तो मैं उसकी आदर करूँगा। Saints, this is worship. संतो, यही आराधना है। Hallelujah. हालेलुया। What an awesome God we serve. एक कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। Are you ready to worship Him? क्या आप तैयार हो उसकी आराधना करने के लिए? Can we all stand up? क्या हम सब खड़े हो सकते हैं?
This is what the Lord had put into my heart. और प्रभु ने यही चीज़ मेरे दिल में डाली थी. Thank you, Lord. Lift your hands to Jesus. Thank you, Lord. अपने हाथों को उठाए यीशु की तरफ. Hallelujah. The same master whom the woman worshipped, he is the same master in this house. और वही मालिक जिसकी उस स्त्री ने आराधना की थी वो यहाँ पर मौजूद है. This woman was not bothered about who was looking at her. This woman was not bothered about who was looking at her. ये स्त्री इस पर गौर नहीं कर रही थी कि कौन उसकी तरफ देख रहा है. She was least bothered. उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था. She only was bothered about one who was present in the house. अब उसका ध्यान सिर्फ उस पर था जो उस घर में मौजूद था. She was only mindful of the master. और वो सिर्फ मालिक पर अपने ध्यान को लगाई थी. And that's why she worshipped him and honored him. और इसने उसने उसकी आराधना की और उसका आदर किया. Saints, it is you alone and Jesus. संतो यहाँ पर सिर्फ आप और यीशु है. Nobody else but Jesus. और कोई नहीं, सिर्फ यीशु. Lift your hands to him अपने हाथों को उठाइए उसकी and तरफ tell him, और उससे कहिए, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन, यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए जमीन, गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, yes Lord, there is no one like you. तुम सा कहीं नहीं,
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। Tell him, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। पूरा बशन Jesus. Hallelujah.
You deserve the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wonderful Father. Glorious Savior. Hallelujah. The Lord is bringing a reverential fear for him. प्रभु एक भय के साथ आदर लेकर आ रहा है उस अपने आप के लिए. We are going to revere him like we have never revered him before. और हम उसका ऐसा आदर करेंगे जैसे हमने आज तक नहीं किया था. We are going to fear him like we have never feared him before. और उसमें ऐसे उससे डरेंगे जैसे अभी तक नहीं डर रहे थे आदर में. It's a holy fear, not the fear of wrath. और एक पवित्र खौफ ये है, ये दंड वाला खौफ नहीं है. That reverential fear will be standing in awe and reverence before him. और ये आदर वाला जो डर है वो उसके साथ हम खड़े रहेंगे उसके सामने. And when we start revering him, और हम उसका आदर करने लगेंगे,
His glory will visit our lives. और उसका गौरव, उसकी महिमा हमारे जीवन में होगी। Thank you, Jesus. We give you praise, Father. हम तुझे आराधना देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। You know, I just want to pray for Benjamin and his wife. मैं चाहता हूँ कि बेंजामिन और उसकी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना Can करूँ। you just come in the front? Yeah, please look at me. Both of you look at me. मेरी ओर देखिए। God has got a plan for both of you all. प्रभु का एक योजना है आप दोनों के लिए, Mighty plan for you. एक महान योजना, And He's going to do great and awesome things through your lives. और वो महान और अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन के द्वारा करेगा, He's going to take you all around the world. और सारे दुनिया में वो तुमको लेकर जाएगा। Don't be bothered about the way people look at you all. और जैसा लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं उससे चिंतित ना हो। Nobody is your savior. Jesus is your savior. आपका बचाने वाला यीशु के अलावा और कोई नहीं है। No person is your savior. कोई भी व्यक्ति आपका उद्धार करता नहीं No है। parent is your savior. कोई भी माता पिता आपको बचाने वाले नहीं No है। brother sister is your savior. कोई भाई बहन आपको बचाने वाला नहीं है। You are not his savior. He is not yours. तुम उसके बचाने वाले नहीं है और वो तुम्हारा बचाने वाला नहीं है। Jesus is your savior. सिर्फ यीशु तुम्हारा बचाने वाला है। He is the King of glory. वो महिमा का राजा है। We were worshiping the Lord and the Lord told me to come, get them in the front and pray for them. जैसे हम आराधना कर रहे थे प्रभु की, तो प्रभु ने कहा कि तुम दोनों को आगे बुलाकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करना। Because He's going to do great and mighty things to your lives. वो महान और अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन के द्वारा करेगा। Forget about who's talking what. और भूल जाओ कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, Forget about even what your mind tells you. और तुम्हारा मन भी तुमको क्या बोल रहा है भूल जाओ। Just focus on what Jesus tells you. सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ कि यीशु तुमसे क्या कह रहा है, And He loves you with an everlasting love. और तुमको एक अनंत काल के प्रेम से वो प्रेम करता है, He's carved you on the palm of His hand. और तुमको अपने हाथ पर उसने लिखा है, Nobody can snatch you out of the hands of और कोई Jesus. भी तुमको यीशु के हाथ से छीन नहीं सकता है। Cast all your cares upon Him. अपनी सारी चिंताओं को उस पर डालो, Because He is the one who cares for you all. क्योंकि वही है जो तुम्हारी चिंता करता He है, is the one who is concerned about you all. उसको तुम्हारी चिंता है, And He is the only one who loves you all with an everlasting और love. सिर्फ वही है जो तुमको एक अनंत काल के प्यार से प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। Would you give your heart to Jesus? क्या अपने दिलों को आप यीशु को देना चाहते हो? He died for you. वो आपके लिए मरा, He shed His blood for you. उसने अपने लहू को आपके लिए बहाया, He was wounded for you. आपके लिए उसने मार खाया था, He was wounded for your transgressions. आपके पापों के लिए उसको चोट मारी गई He थी, was bruised for your iniquities. और हमारे पापों के लिए उसको पीड़ा दी गई He थी, was chastised for your peace. और उस पर दंड हुई हमारी शांति के लिए, And with His stripes, और उसके लगे हुए कोड़ों के द्वारा you are healed. तुम चंगे हो गए हो। Jesus wants to heal you completely. यीशु तुमको पूरी तरह से चंगा करना चाहता है। Join hands, both of you. अपने हाथों को पकड़िए दोनों। Thank you, Lord. Church, would you stretch your hands? कल से अपने हाथों को इनकी तरफ उठाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Father, I thank you for your great love for them, Lord. पिता तेरे अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं Your उनके word लिए। declares, but God who is rich in mercy, तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर जो दया में धनी है, because of your great love wherewith you loved us, तेरे उस अद्भुत प्यार के लिए जिससे तूने हम पर प्रेम किया, even when we were dead in sins, जब हम पापी ही थे और पाप में मर गए थे, you have quickened us together with Christ. तूने हमको फिर से जीवित किया यीशु मसीह के You have साथ, made us alive, Lord, और तूने हमको फिर से जीवित किया है, and you have raised us up together, और तूने हमको तेरे साथ में मुर्दों से जिलाया and है, you have made us sit together और तूने तेरे साथ हमको बिठाया है in the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में, at your right hand, तेरी दाहिनी ओर। far above all principality and power, बहुत ऊंचा तूने किया है सारे प्रिंसिपैलिटीज से हमको, and might and dominion, और राज्यों से और ताकत से, and every name that is named, और हर एक नाम जिसको नाम लिया जाता है, not only in this world but also in the world to come. सिर्फ इस दुनिया में नहीं लेकिन उस संसार में भी जो आने वाला है। We thank you for this honor, Lord. इस आदर के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। Thank you for honoring us so much. हमको इतना आदर देने के लिए धन्यवाद। Thank you for making us sit together with you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको तेरे साथ बैठाया है। That's the highest honor, above Father. सबसे ऊंचा आदर ये है। Hallelujah. हालेलुया। We give you praise.
तेरी स्तुति करते We हैं, give you glory. तुझे महिमा देते हैं। Baba, I thank you for both of them. हम इन दोनों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। Lord, I give you praise for the glorious plans that you have for them, Mama. तेरे अद्भुत उन प्लान्स के लिए धन्यवाद देते हैं जो इनके लिए तूने बनाए हैं। Thank you, Lord, that you have given them a new beginning. तूने इनको एक नई शुरुआत दी है, इसलिए धन्यवाद। Thank you that you have strengthened their hearts, O Lord. तूने इनको दिलों को मजबूत किया, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Lord God, that you have stirred their hearts for you, Abba तूने Father. अपने इनके दिलों को तेरे लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए धन्यवाद। Thank you for opening the eyes of understanding, O righteous इनकी Father. आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद धर्मी पिता। They will know you in a very different way, Abba Father. तुझे बहुत अद्भुत रीति से ये जानने लगेंगे। They will know the love of Christ. तेरे प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को ये लोग समझेंगे। They will know the love of Christ, मसीह के प्रेम को ये लोग समझेंगे, जानेंगे, which passeth all knowledge. जो हर एक ज्ञान से परे है। Thank you, Lord, धन्यवाद यीशु that you are opening up doors for them, Abba कि Father. इनके लिए दरवाजे तू खोल रहा है। I command every closed doors to be opened in the name हर of बंद Jesus. दरवाजे से मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम से खुल जा। I command every closed door that the enemy has shut to be opened in the name of हर उस Jesus. दरवाजे को जिसको शत्रु ने बंद किया, उसको यीशु के नाम से मैं खोलता हूँ। Lord, I speak divine health over their lives, Lord. प्रभु तेरे दिव्य स्वास्थ्य को मैं इन पर घोषित करता हूँ। I speak revitalization to their bodies, Abba मैं Father. इनके शरीर के फिर से उसमें जान आने में मैं उसको घोषित करता हूँ I speak to every part of their body to be rejuvenated in the name of Jesus. कि शरीर के हर एक हिस्से से मैं बात करता हूँ कि तू फिर से सामर्थ्य से भर जा। I thank you, Lord, that you have revived and you started reviving everything in every area of their lives, Abba तूने इनको Father. फिर से नया करना शुरू किया इनके जीवन के हर एक हिस्से में, इसलिए धन्यवाद पिता। Thank you for quickening your word, Abba Father. तेरे वचन को इनमें बोने के लिए धन्यवाद। Thank you for setting them free, Lord. इनको तूने आजाद किया, इसलिए धन्यवाद। You have set them free, Lord. तूने इनको आजाद किया है And you will use them to set others free. और तू इनको इस्तेमाल करेगा कि औरों को जाकर ये आजाद करे। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Thank you, Lord God. धन्यवाद यीशु, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you praise. तेरी आराधना करते हैं। For you have made them a shining light, O Lord. तूने इनको एक चमत्का हुआ ज्योति बनाया, इसलिए You have धन्यवाद। made them the light of the world. इस संसार की ज्योति बनाया, इसलिए धन्यवाद। You have made them a city that is set on a hill that cannot be hidden, Master. एक ऐसा शहर जो पहाड़ पर है, जो कभी छुप नहीं सकता, ऐसा तूने उनको बनाया, इसलिए धन्यवाद। You have made them the salt of the earth, O तूने God. इस संसार में उनको नमक बनाया है। We give you praise. हम तुझे स्तुति देते हैं। Be glorified, be magnified in their lives above. इनके जीवन से तुझको गौरव मिले पिता। Thank you, Abbu. धन्यवाद पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. God bless you. The other person whom I want to praise, Brother Sam. और दूसरे व्यक्ति जिसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाई सैम है। You know, I see letters. The Lord speaks to me in letters. और प्रभु मुझसे अक्षरों में बात कर रहा है, मैं अक्षर देख पा रहा हूँ। Dimensions, the Lord says. डायमेंशंस प्रभु बोल रहा है। Dimensions डायमेंशंस of the spirit realm. आत्मिक जग के, You're going to step into it. तुम उसमें प्रवेश करोगे। See this. You're stepping into that dimension. तुम उस डायमेंशन में प्रवेश कर रहे हो। You're going to get into that realm. We're going to see God's glory. और जब तुम उसमें प्रवेश करोगे तो परमेश्वर की महिमा को हम देखेंगे। It's very difficult for me to even explain. Actually, you know, finding words very difficult. और मैं शब्द नहीं खोज पा रहा हूँ जिससे कि मैं इसको तुमको बता सकूं। It is not one dimension. It is dimensions. और सिर्फ ये एक डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशंस है, अलग अलग। Whether it is healing, whether it is finance, a lot of dimensions. चाहे चंगाई हो, चाहे आर्थिक चीजें हो, ऐसे बहुत सारे डायमेंशंस है। Even calling out names. तुम नामों को भी पुकारोगे The exact problem. और एकदम सटीक जो समस्या है उसको बताओगे। And the exact solution to that problem. और एकदम सटीक सॉल्यूशन आप बताओगे। Only dimensions, dimensions, and dimensions and dimensions. डायमेंशंस।
that realm is going to become very real to you. और ये जो जग है, आत्मिक युग है, ये बहुत असली बन जाएगा तुम्हारे लिए. In that realm, you will see the angelic manifestation. और वहां पर तुम सरदूतों की सेवा को देखोगे. You will start experiencing that manifestation in that realm. और तुम उस परमेश्वर के कार्य को तुम महसूस करने लगोगे. You are stepping into it. तुम उसमें प्रवेश कर रहे हो. And there are no limitations in that dimension. और वहां पर कोई सीमाएं नहीं है उस जग में. It transcends time, it transcends everything. और ये समय से परे है, हर चीज के परे है. In that dimension, you don't pray for people to get healed. उस जग में, उस युग में तुम लोगों के लिए प्रार्थना भी नहीं करोगे चंगा होने के लिए. The moment you enter that realm, into that dimension, any sickness, any person who is sick comes and stand before you will be automatically healed. Amen. जब तुम उस जग में प्रवेश करोगे तो जब भी तुम किसी बीमार व्यक्ति के सामने जाओगे तो वो चंगा हो जाएगा. In that dimension, you don't call out your finances. उस जग में, उस स्थान में तुम अपने आर्थिक चीजों को बुला नहीं रहे हो. In that dimension, all those, whether it is gold, silver, finances, they automatically get attracted. उस डायमेंशन में सोना, चांदी और सारी बरकतें तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है. The understanding and the revelation and even dimensions of God's word is greatly multiplying upon your life. और परमेश्वर के वचन के बारे में भी जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तुम में. I give you praise, Father. पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ. You're going to see things in the word which you have never seen before. और काम में ऐसे चीजों को तुम देखोगे जो अब तक नहीं देखे हैं. And you're going to see things in the scriptures that you have never seen before. और वचन में ऐसे चीजों को तुम देखोगे जो अब तक नहीं देखा है. Thank you, Lord. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Pastor, the Holy Ghost tells me that He's opening up doors for you. पास्टर, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके लिए दरवाजे वो खोल रहा है. I don't know when, but someday the Lord is taking you to Singapore. मैं नहीं जानता कब, लेकिन जल्दी परमेश्वर आपको सिंगापुर लेकर जा रहा है. Singapore, Afghanistan. अफगानिस्तान. You're going to North Carolina. नॉर्थ कैरोलिना में आप जा रहे हो. Michigan. मिशिगन में. Sweden. स्वीडन. रिकश. My God. The Lord will even take you to Bihar to talk to the Biharis. प्रभु बिहार भी आपको लेकर जाएगा बिहारियों से बात करने के लिए. Hallelujah. And I see such demonstration of God's power greatly displayed in those places. और परमेश्वर के सामर्थ को मैं महान तरीके से देख रहा हूँ उस जगहों पर. Even Kolkata, the Lord is opening up doors for you. कोलकाता में भी प्रभु दरवाजे खोल रहा है आपके लिए. Thank you, Jesus. I see your health springing up. मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को उछलता हुआ देख रहा हूँ. You're getting stronger and stronger and stronger and stronger day by day. और मजबूत होते जा रहे हो दिन भर दिन. Thank you, Lord. The Lord doesn't want you to be even, forget about being bothered, even thinking about your finances. प्रभु नहीं चाह रहा है कि तुम परेशान तो छोड़ो, उसके बारे में सोचो भी, तुम्हारी आर्थिक समस्याओं के बारे में. That's not your lookout. ये तुम्हारा काम नहीं है. They are all positioned and lined up for you. ये सारी चीजें अपने स्थान में लग गई है तुम्हारे लिए. Thank you, Lord. We give you praise, Father. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sister. No, sit. Pastor, you can sit. The word of God will become very real to you. परमेश्वर का वचन बहुत जीवित हो जाएगा आपके लिए. And the word of God, when you start meditating on God's word, और जब परमेश्वर के वचन पे आप मनन करेंगे,
the word of God will start rejuvenating every part of your body. और परमेश्वर का वचन आपकी शरीर के हर एक हिस्से को फिर से नया करेगा. It will be a process, but it's going to rejuvenate you from the top of your head to the very soles of your feet. और ये प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन आपके सर से लेके आपके पाँव तक आपका शरीर नया हो रहा है. Your eyes won't get dim. It will go brighter and brighter and brighter and brighter. आपके आंखों की रोशनी और बढ़ती रहेगी. The path of the just is like the shining light that shineth more bright and brighter unto the perfect day. और धर्मी का मार्ग ऐसा होता है, एक चमकते हुए सितारे जैसा होता है कि वो हर समय और ज्यादा चमकता है. I see both of you all moving with God's glory. मैं देख रहा हूँ कि तो आप दोनों परमेश्वर के गौरव से आगे बढ़ रहे हो. He's taking you all around the world to take the saving and the healing gospel to the ends of the earth. आपको प्रभु संसार में लेकर जा रहा है, उसकी सुसमाचार को इस पृथ्वी के छोर तक प्रचार करने के He's लिए. opening up doors for you all. आपके लिए दरवाजों को खोल रहा है. And your strength will be renewed like that of an eagle. आपका जो सामर्थ्य है, जो बल है, एक गिद्ध की तरह, चील की तरह फिर से नया होगा. You will run and you will not be weary, and you will walk and you will never faint. आप दौड़ोगे और थकोगे नहीं, और आप चलोगे और आप कभी बेहोश नहीं होंगे. You know, the Lord shows me a word, and He says that the Lord is restoring everything, every area, everything, all the years that the locusts had eaten up. प्रभु मुझे कुछ दिखा रहा है, और प्रभु बोल रहा है कि जो भी सालों को कीड़ों ने, टिड्डियों ने खा लिया है, उन सबको परमेश्वर वापस लौटा रहा है. You have been restored back to your life. वो सारी चीजें आपके जीवन में फिर से जोड़ी जा रही है. Thank you, Father. I give you praise. After you get married, I see doors just bang open for you all, both of you all, everywhere. I don't know how many years you're working. I mean, like, I don't know. Thank you, Jesus. Both of you all are traveling. I can only see you all traveling and traveling and traveling and traveling. And you're not traveling by bus and train. You're only traveling by plane because you don't have time. Amen. By bus and train. Amen. You're only traveling to preach the gospel. Amen. Taking just 1 month, just after you get married, just 1 month after you get married, the doors are bang opening up everywhere. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Glorious life in Christ. Amen. Awesome life in Christ. Amen. Blessed life in Christ. Thank you, Father God. Oh, I give you praise. I give you praise. America is waiting for you. अमेरिका तुम्हारे लिए रुका है. It's waiting for you. तुम्हारे लिए रुका है. God has positioned you for that nation. परमेश्वर ने इस राष्ट्र के लिए तुमको रखा है. And that nation will be turned to the Lord just because God is taking you over there. और प्रभु तुमको लेकर जा रहा है ताकि वो राष्ट्र फिर से प्रभु की तरफ मुड़े. Hallelujah. Brother Amish, भाई अमिश, there are a lot of, I mean, like, you are laying up gold like dust. सोने को आप धूल की तरह जमा कर रहे हो. I said, you are laying up gold like dust. मैंने कहा कि सोने को तुम धूल की तरह जमा कर रहे हो. There is dust on this podium. इस टेबल पर धूल है. So when you go out, when you come in, जब बाहर जाकर आप वापस आओगे, there are a lot of dust that gets accumulated in the house. और बहुत सारा धूल घर में जमेगा. So you will lay up gold like dust. तो धूल के समान तुम सोने को जमा करोगे. And there is more dust accumulated in the dry season. और सूखे में ज्यादा धूल जमा होता है. Right? जब dry season होता है, सबसे ज्यादा dust रहता है. Yes. When the economy is down, still you lay up gold like dust. और जब इकोनॉमी नीचे है, तब भी तुम सोने को धूल के समान जमा करोगे. Church, we are changing the economy of this nation. कलीसिया, हम इस देश के, इस राष्ट्र के इकोनॉमी को बदल रहे हैं. Hallelujah. हालेलुया. The wealth of the Gentiles is laid up for us. पापियों का धन को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. It's coming in for the gospel. वो सुसमाचार के कार्य के लिए आ रहा है. आपको देखो, मैं ऐसे से कर रहा हूँ. आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, ऐसे करो, आने दो. You know, this is a prophetic sign. हम लोग हवा में हाथ नहीं हिला रहे, राइट?
You're calling out things which are not as though they are. And you, both of you sisters, God is going to use you very mightily for His glory. आप दोनों बहनों को परमेश्वर बहुत महान तरीके से इस्तेमाल करेगा उसके गौरव के लिए, Very mightily. बहुत महान तरह से. You and Sister Alice, you are going to Australia. आप और सिस्टर एलिस आप लोग ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हो. You all both are going to Australia to preach the gospel. आप दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो सुसमाचार बांटने के लिए. Hallelujah. God is going to take you all to Sydney and Melbourne and सिडनी और मेलबोर्न में प्रभु आपको लेकर जा रहा है. to revive the dead churches over there. वहाँ के मरे हुए कलीसियाओं को फिर से जीवित करने के लिए. And when you go, a fire will fall. जब आप जाओगे तो वहाँ पर आग बरसेगी पवित्र आत्मा की. Thank you, Jesus. हालेलुया. Thank you, Lord. Oh, we give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I'd like to call upon Pastor. हालेलुया. हम सब आशीर्वादित हुए हैं. आमेन. टेस्टिमनी. हाँ, साक्षी का समय है. किसी को गवाही देना है प्रभु के महिमा के लिए तो आप आके दे सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. इस सिस्टर की गवाही है. मार्च में इनको, आई थिंक मार्च में आप एडमिट हुए थे. यस. तो डॉक्टर ने बताया था कि इनको स्ट्रोक आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला है. कि और एक साइड का उनका आई थिंक राइट लेग का जो उंगली था वो ऑलरेडी पैरालाइज हो गया था, काम नहीं कर रहा था. तो उसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि ये स्ट्रोक का साइन है, आपको स्ट्रोक आ सकता है कभी भी. और उसके बाद से सिस्टर को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ऐसे चल नहीं पाती थी ठीक से. और लेकिन वो फिर भी फेलोशिप को आती थी और वहाँ पे आके वचन हम शेयर करते हैं, वहाँ पे बाइबल स्टडी होता है. तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ उन्होंने सीखी. क्या सीखा आपने? वचन पे मनन करना. यस, उन्होंने सिर्फ सीखा वचन पे मनन करना है, वचन में ही रहना है. क्योंकि डॉक्टर बताते हैं ये करो, ये मत करो, वो मत करो. उन्होंने सुना वचन पे मनन करो, तो सिर्फ उन्होंने वो किया. और उसके बाद उनका जो, वो अभी वही बताएंगे क्या हो. परमेश्वर की महिमा हो. मुझे एक वचन बार बार याद आ रहा था कि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में हम उसके कामों के लिए सृजे गए हैं. तो ये मैं सोचती थी कि हम उसके बनाए हुए, तो हम क्यों चिंता करें आगे की, कि हम बीमार पड़ रहे हैं, हम मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मैं बार बार हॉस्पिटल जा रही हूँ. नहीं, मुझे क्या करना है, मतलब परमेश्वर क्या चाहते हैं मुझे, कि वो उसने मुझे बनाया और उसने सृजा है उसके भले कामों के लिए. तो मैंने सोचा कि मेरे लिए, मैं तो स्टेज पे जाके नहीं बोल सकती, मैं वचन नहीं सुना सकती, मैं ये सब नहीं कर सकती, तो मेरे लिए क्या काम है. तो मेरे बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता था. लेकिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि तू सिर्फ वचन पे ध्यान दे और मेरे साथ चल. ये मुझे वो हमेशा बोलते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि कैसे चलूँ, कैसे चलना चाहिए. लेकिन इस टीम ने मुझे बताया कि हमारा किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्री ने बताया कि आपको वचन में बढ़ना है, आपको वचन पे मनन करना है और यही परमेश्वर के साथ चलना होता है. तो मैंने वही शुरू किया और मैं हर एक वचन को बोलने लगी. ऐसे जैसे मैं अकेले भी हूँ, वॉकिंग पे भी जा रही हूँ, तो बस मैं वचन बोल रही हूँ. तो ये सच में वचन कार्य करता है, क्योंकि ये जीवित वचन है, ये मेरे समझ में आया. तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा. मैं बेबी स्टेप चलने लगी थी. जब मुझे डॉक्टर ने, हॉस्पिटल से मैं बाहर आई, आईसीयू में मैं 4 दिन थी. 4 दिन में मैं सब भूल गई, वचन नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं हो रहा. मुझे ऐसे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगी, ये तो मेरा हो ही गया था. लेकिन जब डॉक्टर मेरे पास आए तो मुझे बोला कि आपकी ये हालत है कि आपने 2 महीने से खाना नहीं खाया, ऐसे लग रहे हो. तो मैंने क्यों नहीं खाया ये पूछ रहे थे. मैं डॉक्टर को देख भी नहीं पा रही थी और मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था. बहुत ही हालत ख़राब थी और सब घर वाले रोने लग गए थे. लेकिन उधर मैंने बोला डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी और
मेरे बच्चों के साथ फिर से परमेश्वर में बढ़ूंगी। ये मैंने उनको खुद बोला है वहाँ पर। तो वो सोचने लगे कि इसकी क्या हालत है और ये क्या बोल रही है। तो उधर जो लेडीज़ थे काम कर रहे थे वो सब मुझे हमेशा ऐसे ही देखते थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला और अपने कलीसिया में फिर से जोड़ा है। तो परमेश्वर ने मुझे, और वहाँ पर मुझे 3 प्रकार की गोलियाँ शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे दवाइयों से छुटकारा चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे दवाइयों से छुटकारा चाहिए था। और मैं मनोज ब्रदर, आमिश ब्रदर से ये बोलती थी मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है ब्रदर, मैं क्या करूँ, मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा। वो बस यही बोलते थे कि परमेश्वर आपके साथ है, आप वचन पढ़ो सिस्टर, आप वचन पे ध्यान दो और वो होगा। और ये लोग मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। मैं हर संडे जाती थी इन लोग के पास और ये मेरे लिए प्रार्थना करते थे। तो परमेश्वर ने वहाँ पर कार्य किया और आज 9 महीने हो गए। 9 महीने में पिछले महीने में मैंने मनोज ब्रदर से कहा कि मुझे दवाइयाँ छोड़नी है, तो कैसे छोड़ूँ। तो बोले कि आपको दवाइयाँ लेना कुछ ये नहीं है, छोड़ना भी कोई ईजी बात है छोड़ना भी, लेकिन आप खुद से मत कीजिए, वो परमेश्वर के वक्त पे होगा। तो सच में, और उन्होंने बोला कि आप दवाइयाँ जब आपको सूट नहीं होगी ना तो आपको रिएक्शंस हो गए। तो मैंने वो चीज़ को मैंने सोचा शायद से ऐसा होता होगा। और सच में 1 हफ्ता पहले मेरे पीठ में दर्द होने लगा और मेरा पूरा चेहरा अभी तो क्लियर है एकदम ही। कल रात तक भी मेरे चेहरे पे बहुत बड़े बड़े ददोरे थे और पूरा स्किन निकल गया था, खून निकल रहा था। तो मैं डॉक्टर गई वहाँ पर कि मेरे पीठ में दर्द है। डॉक्टर ने बोला आपको किडनी स्टोन है। वो सोनोग्राफी किया, लेकिन वो रिपोर्ट में वो ढूंढ रही कि स्टोन कहाँ है। उसने बोला कि आपकी किडनी तो पूरी तरह से तंदुरुस्त है और उसका साइज़ भी सही है, सब कुछ सही है, आपको किडनी स्टोन नहीं है। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया और ब्लड टेस्ट में मुझे बताया कि आपको शुगर बहुत हाई हो गया है। फिर से दूसरा टेस्ट करवाया उन्होंने, तो देखा क्यों ऐसा तकलीफ हो रहा है। तो पता चला कि मुझे कोलेस्ट्रॉल एकदम लेवल में आ गया है और जो खून की गांठें हुई थी मेरे शरीर में, उसके लिए एक गोली चालू थी कि खून पतला होने की, तो वो भी सब क्लियर हो गया है और मेरी ये दोनों गोलियां बंद हो चुकी है। तो ये सब बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो लोग हैं उनको एक को कोलेस्ट्रॉल की गोली ज़िंदगी भर के लिए है और एक को वो खून पतला होने की गोली वो लोग 20 साल से खा रहे हैं। तो परमेश्वर ने मुझे 9 महीने में ही ये सारी गोलियों से छुटकारा दे दिया, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। यस, थैंक यू जीसस। सो सिस्टर यहाँ पे आती है और यही चीज़ सबको यहाँ पे टेस्टिमनी देने का मतलब यही है कि सिस्टर यही बताना चाहती है सबको कि वचन जीवित वचन है, उस पर जब हम मनन करते हैं तो ये जीवित गवाही हम बनेंगे प्रभु के लिए, है ना। क्योंकि जो वो बता रही है कि सालों से कोई दवाई खाते जा रहा है, लोगों को लगता है कि यार इससे कुछ छुटकारा ही नहीं है, यही हमारा जीवन है, लेकिन हमारा प्रभु जीवन बदल लेता है ना। तो यस, एक और गवाही देनी थी। मैं पिछले महीने ब्रदर के बर्थडे के दिन आई थी, तो जो 15 साल से एक तकलीफ था मुझे, उन्होंने और अलीशा सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया और उस तकलीफ से भी मुझे छुटकारा मिलके 1 महीना हो गया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु का। यस, थैंक यू जीसस। अंकल हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का वचन हम सब के अंदर काम कर रहा है ना। दैविक आरोग्य में चलना ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है ना। जो परमेश्वर से जन्मा है वो बीमारी में रह ही नहीं सकता है, गरीबी में नहीं रह सकता है, तंगी में परेशानी में नहीं रह सकता है। हालेलुया, क्योंकि सबका दाम यीशु मसीह ने चुका दिया है। हालेलुया। तो हमको सिर्फ प्रकाशन की जरूरत है कि परमेश्वर पिता हमसे कितना प्रेम करता है। आज का जो वचन था, है ना, वचन से सब लोगों को प्रभु ने छुआ है ना। जिसका ज्यादा पाप क्षमा होता है, बाइबल में लिखा है कि वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है परमेश्वर से, और परमेश्वर ने हमारा सबका बहुत ज्यादा पाप क्षमा किया है ना। कोई तरीका नहीं था कि हम लोग स्वर्ग में जा सके। कितने भी भले काम करो, कितने भी अच्छे काम करो, हम लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया और उसने हमको बचाने के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, है ना। हमारे जगह पर वो मर गया। कितना बड़ा दाम उसने चुकाया, है ना। जो ये जानेगा कि उसको कितना बड़ा, है ना, कितना बड़ा पापों से उसने छुड़ाया है, वो उतना ज्यादा प्रभु से प्रेम करेगा, है ना। और जो प्रभु से ज्यादा प्रेम करेगा वो अपने जीवन में आशीर्वादित होते रहेगा। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु से प्रेम करना मतलब उसके वचनों से प्रेम करना है ना। प्रभु के लिए हम हर एक चीज करने के लिए तैयार होंगे, और जब हम प्रभु के वचनों में है ना चलने लगेंगे, अपने आप हमारा जीवन आशीर्वादित होते रहेगा। हालेलुया। दैविक आरोग्य हमारे अंदर ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आने लगेगा, आमीन। और समृद्धि हमारे अंदर अपने आप आने लगेगी। ये सब बाय डिफॉल्ट आने वाला है ना, ये बाय प्रोडक्ट है। तो हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम सबके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, हम सबको तैयार कर रहा है। हर एक भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद। हम सबको प्रभु बहुत प्रेम करता है भाई बहनों, और वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हर समय वो हमारे साथ रहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। आपने हमारे सारे पापों को प्रभु जी अनगिनत थे प्रभु जी, वो करोड़ों अरबों पाप थे प्रभु जी, उन सारे पापों से प्रभु आपने हमको क्षमा किया है पिता। और वैसे ही प्रभु जी हम आपसे वैसा ही प्रेम करें प्रभु जी। हमारा हृदय हमेशा आपको चाहे प्रभु, हमारा मन आपको चाहे पिता, और आपके साथ हम हमेशा बने रहे प्रभु। ऐसी कृपा हम सबके जीवन में आपने दिया है पिता, इसके लिए धन्यवाद। आपसे बढ़कर प्रभु जी हमारे जीवन में कोई बात ना हो प्रभु जी, न धन हो, न दौलत हो, न कोई भी बात, नाम शोहरत, कोई भी बात ना हो प्रभु, लेकिन आप हमारे लिए सबसे बड़े हो प्रभु जी। सबसे मूल्यवान हमारे जीवन में आप ही रहे पिता। धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। ये कलसिया को आप तैयार कर रहे हो प्रभु, ये कलसिया के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। ये कलसिया प्रभु जी हर समय प्रभु जी फलवंत रहे प्रभु, और इनके फल बढ़ते रहे पिता। और ये कलसिया के द्वारा आपके नाम को प्रभु जी लोग जाने कि ये कलसिया का जो प्रभु है वो यीशु मसीह है पिता। धन्यवाद करते प्रभु। सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, मिलिए और समय पे आइए ताकि हम मिलकर उसकी आराधना करें, आमीन। हम आखिरी गीत के लिए खड़े हो जाएंगे। आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी जाना प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा
छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो तुम निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो तुम निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Thank you, Jesus. हम लोग डिसमिस हो सकते हैं अभी।